Okay, good morning everyone. Today we will be solving question number 2. Question number 1 we have already done in class and I hope you have understood it. So question number 2 says use two-phase method to solve following LP problem. Maximize Z is equals to 3x1 plus 2x2. This is 2. 2x2 plus 2x3. Subject to the constraints. First constraint is 5x1 plus 7x2 plus 4x3 less than equal to 7. Second, minus 4x1 plus 7x2 plus 5x3 greater than equal to minus 2. And third constraint is 3x1 plus 4x2 minus 6x3 greater than equal to 29 divided by 7. Okay, so let's start with the solution. Now this is the problem of maximization. So in phase 1, our artificial objective function is always going to be for minimization. So let's see how we are going to solve it. Phase 1. In phase 1, we will treat the question as of minimization. सो फेज़ 1 में हम हमेशा क्वेश्चन को, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन का हो तो हम उससे पहले फेज़ 1 में हमेशा मिनिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन ट्रीट करते हैं. एंड अगर मिनिमाइजेशन का ही क्वेश्चन है जो कि हमने क्वेश्चन 1 किया था तो उसमें फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों में ही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन रहेगा. मिनिमाइजेशन ऑफ z एंड देन इसमें हम सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ही फेज़ 1 में लेते हैं. Okay, theory we have already discussed in our Zoom class. So point number 2. In above given constraint, second constraint has a negative value. आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 constraints given है जिसमें जो हमारा second constraint है उसमें negative value है. एंड हमें अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, डैट इज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द राइट हैंड साइड ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स, RHS right hand side of all the constraints should be positive. Here we are having one negative constraint, so we'll multiply this whole second constraint, whole equation by minus 1 so that we can get here a positive sign. So let's see. So I've written here the constraint, second constraint again, and we are going to multiply the whole equation. This is equation by minus 1. So minus 1 and this is my whole equation. So minus 1 into minus 1 into minus 4x1, you will get a positive 4x1. Then minus 1 into 7x2, you will get minus 7x2. Then minus 1 into 5x3, so you will get a minus 5x3. The sign will change, so I'm going to put here less than equal to, and then minus 2 into minus 1 will give you a positive. So 2. Now you can see here our right hand side is positive. I hope till here the question is clear. So now we'll move ahead. Now in first and second constraints have less than equal sign. ठीक है, हमारा जो फर्स्ट एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट है आप देख सकते हैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमारा साइन दिया है लेस देन इक्वल का, एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय माइनस 1, तो हमारा साइन यहाँ पे लेस देन इक्वल का हो गया एज यू कैन सी हियर. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट का पे साइन है लेस देन इक्वल टू. नाउ यू कैन गो टू योर थ्योरी विच वी हैव रिटन इन क्लास एंड यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर दैट इन सच टाइप ऑफ अ सिचुएशन वेयर द साइन इज ऑफ लेस देन साइन वी विल एड ओनली स्लैक वेरिएबल. इस केस में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू एड ओनली slack variable. And in our third constraint the sign is of greater than equal type. So you can see here यहाँ पे ये हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट है, इसमें साइन ग्रेटर देन इक्वल का है. सो इस केस में वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल. वी आर हियर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल्स and we will add artificial variable. ठीक है, तो इस केस में for third constraint I'm going to subtract slack variable and simultaneously I'm going to add artificial variable too. So these are my final constraints you can see here.
सो फर्स्ट है हमारा 5x1 प्लस 7x2 प्लस 4x3. हेयर फर्स्ट कंस्ट्रेंट में आई हैव एडेड ओनली स्लैक वेरिएबल दैट इज प्लस s1. Now my less than equal sign has changed to only equal sign and solution is 7. For second constraint again 4x1 minus 7x2 minus 5x3, I have added another slack variable that is s2 plus s2. Then again our less than equal sign has converted into equal, and then finally the solution is 2. Then third is 3x1 plus 4x2 minus 6x3. Here the sign was of greater than equal, so I have subtracted my third slack variable s3. Okay, and plus I have added one artificial variable a1, so equal to 29 by 7. I hope till here the question is clear to you all. अब हम चलते हैं अपने न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ. हमेशा मेरा न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट फेज में it's going to be minimize z. Okay, it's going to be minimize z. And what objective function you are going to take? Only artificial variable a1. Okay, अगर यहाँ पे a2 भी होता तो हम a1 प्लस a2 ले लेते, लेकिन हम स्लैक वेरिएबल और अपने अदर वेरिएबल्स जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में गिवन है x1 x2 x3, आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर हेयर इन फेज 1. सो मेक श्योर यू आर एक्चुअली राइटिंग दिस क्लियरली. सो इन फेज 1 मिनिमाइज z इज इक्वल टू a1. हमारा क्वेश्चन कह रहा था मैक्सिमाइजेशन के लिए, लेकिन हम फेज 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का बनता है. ओके, सो हमने ये अपना न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेडी कर लिया है. अब हम इसके साथ इसको देख करके इतनी इन्फॉर्मेशन से आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल. सो लेट्स सी हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल विच यू आर सपोज टू ड्रॉ इन योर कॉपी. सो CBI, CJ, then basic variable. Basic variable we have taken all. ठीक है, so x1 x2 x3 and all the variables have taken s1 s2 s3 and last column is of a1. Here you can see as my objective function has only minimized z and the values for a1. तो यहाँ पे assume करते हैं हम artificial variable के आगे value 1 है, बाकी और कोई मैंने variable नहीं लिखा है. We assume that every variable has a 0 value. Okay, in phase 1. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 x2 x3 s1 s2 s3 के सारे वैल्यूज़ 0 हैं. ओके, एंड a1 ही है सिर्फ हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. सब रिटन है 1. देन द कॉलम इज़ फॉर सोल्यूशन एंड रेशियो. सो यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स की तरफ. सो यू कैन सी द कंस्ट्रेंट्स हियर. फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमारे पास स्लैक वेरिएबल s1 है. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट जो हम लिखते हैं कंस्ट्रेंट के लिए, उसमें मैंने s1 को डिनोट किया है. देन सेकेंड कंस्ट्रेंट में यू कैन सी s2 इज़ देयर, सो आई हैव टेकन हियर s2. एंड लास्ट में हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, s3 भी है एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल भी है. तो हम सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही कंसिडर करेंगे. ओके, सो अगर हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, सो आई एम गोइंग टू टेक द आर्टिफिशियल वेरिएबल बिकॉज माय मेन मोटिव इज टू ड्राइव दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल आउट. ठीक है, तो मैंने यहाँ a1 को ही कंसिडर किया है. सो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन हियर a1. नाउ अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे. सो यहाँ पे मैंने ये सारे वैल्यूज़ पुट किए हैं फ्रॉम दिस. सो 5 x1 के नीचे है, सो x1 के नीचे आई हैव रिटन 5. देन x2 के लिए 7 है तो पॉजिटिव 7. देन x3 के लिए आई हैव रिटन हियर 4. ये फ्रॉम हियर आई हैव टेकन 4x3, सो यहाँ पे मैंने 4 लिखा है. देन s1 के लिए स्लैक वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल s1 है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 1. Okay, and s2 is not there, 0. s3 is not there, 0. And artificial variable is also not there, so 0. And solution is 7. You can see here. ठीक है, 7. Then अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड कंस्ट्रेंट 4x1. So I have written here 4. Then for x2 it's -7. So I have written here -7. Then for x3 is -5. And there is no s1 here. You can see only s2 is there. ओके, सो यहाँ पे मैंने s1 की जगह 0 ले लिया. s2 के कॉलम में आई हैव रिटन 1 and then s3 again 0 because it's not there. Artificial variable is also not there, so 0. Here in solution I have put in 2 from here.
Okay, now let's move to the third constraint, 3x1 4x2. So x1 के column में 3 and x2 के column में I have written here 4. Then x3 is minus 6, so I have written here minus 6 in the column of x3. S1 and S2 are not here, but we have S3 and that too negative, so I'm going to write here minus 1 in S3 column. So you can see here S1 is not there and S2 is not there, so I have put in a 0, and in S3 column it was a minus S3, so I have written a minus 1. Artificial variable is there, you can see here it's plus A1, so I have written here 1. Okay, and solution के column में I have written this 29/7. Okay, so till here I hope it has been drawn in your copy. Now we will be calculating the zj values. तो इसके बाद zj है, then cj minus zj. So zj के values हम calculate करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे coefficients के values देने हैं. So S1 का value I'm taking here from here. It is a 0, so I'm going to put a 0 here. Then S2 का value again it's a 0, you can see here, so I'm going to put a 0 again here. Now here A1 has a value of 1, so I'm going to put a 1 here. Okay, let's start solving. 0 into 5 will give you a 0, plus 0 into 4 will give you a 0, plus 1 into 3, so I'm going to put here 3. My first zj is 3. You can solve it yourself and then you can pause the video and see whether you have solved it correct or not. That would be a sort of practice for you. 7 into 0 plus is going to be a 0, plus minus 7 into a 0 would be again a 0, plus 4 into 1. So I'm going to put a 4 here. Again 4 into 0 would be a 0, plus minus 5 into a 0 would be a 0, plus minus 6 into 1. So I'm going to put here minus 6. Next 1 into 0 would be a 0, plus 0 into 0 would be a 0, plus 0 into 1 would be a 0. So here I'm going to write a 0. Then 0 into 0 would be a 0, plus 1 into 0 would be a 0, plus 0 into 1, again it's a 0. Again I'm going to solve this. 0 into 0 is 0, plus 0 into 0 is 0, plus minus 1 into 1. So I'm going to get here minus 1. Again 0 into 0 would be a 0, plus 0 into 0 would be a 0, plus 1 into 1 will give you a 1. 7 into 0 would be a 0, plus 2 into 0 would be a 0, plus 29/7 into 1 will give you 29/7 here. Okay, so these are my zj values. Now we will calculate cj minus zj values. Okay, so first cj value is 0, minus 3 will give you a minus 3. Minus 3. Then next cj value is 0, minus 4. So it's going to give you a minus 4. Then 0 minus 6. So there would be 2 minus sign. So I'm going to write here plus 6. Minus would be getting a plus. 0 minus 0 would be a 0. Again 0 minus 0 would be a 0. 0 minus 1. So I'm going to get here plus 1. And then 1 minus 1 would be a 0. So after calculating my cj minus zj values, we will be checking the optimality condition for minimization. Please note it down. Phase 1 में हम सिर्फ minimization objective function ले रहे हैं. So we would be checking the optimality condition for minimization. Now हमारा minimization के optimality condition क्या रहती है? After finding the cj minus zj values, we will check optimality condition for minimization. That is, all cj minus zj values should be greater than equal to 0. ठीक है? That means all the values should either be 0 or should be the positive values. But here you can see there are few zeros and there are 2 positive values, but there are 2 negative values too. ठीक है, तो 2 negative values भी आपको दिख रही हैं, जिसमें से हम most negative value choose करते हैं. So out of minus 3 and minus 4, I'm going to choose minus 4 because it is the most negative value, and this is representing x2. So x2 is going to be my key column. So I'm going to mark it with pencil, and before marking you can note down the theory also.
So as here we have two negative values, that is -4 and -3. So we'll choose the most negative value and mark the whole column of x2 as key column. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, x2 कॉलम को एज अ की कॉलम we'll mark. Okay, now you can see here I have marked the whole key column is with a pencil. Now after finding my key column, my next step is to find the key row. And to find the key row, I need to have ratios. Okay, so next point आपका क्या होगा कि in order to find the key row, we'll calculate the ratios. And for ratios, the formula is solution values divided by key column. So we'll calculate the ratios now. So you can see here, first solution value is 7. 7 divided by 7. So solution divided by key column value. So 7 divided by 7, you will get a 1 here. So I'm going to write a 1. Next is 2 divided by -7. Okay, so मैं माइनस का साइन नीचे ना लिख करके आई एम गोइंग टू राइट ऑन द टॉप. ठीक है, तो -2/7 भी हम लिख सकते हैं. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 2 डिवाइड बाय -7, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ मैंशनिंग. सो क्योंकि माइनस आप न्यूमरेटर में हमेशा शो करते हो, तो 2 डिवाइड बाय 7 लिख लीजिए एंड ये -7 का जो साइन है वो हम ऊपर शिफ्ट कर दें. सो 2 डिवाइड बाय 7 देन -2 डिवाइड बाय 7 बिकॉज दिस अ माइनस साइन. फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा सोल्यूशन इज 29/7 डिवाइड बाय 4. Okay, so 29/7 divide by 4. So ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा. That is, इसको मैं आपको रफ में सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ कैसे करना है. You can see here 29/7 divide by 4. So here I'm not having any numbers, I'm going to put a 1 here. So 29/7 into 1/4. Okay, so here I'm going to write 29 divide by 7 4 is 28. So it's 29 divide by 28. You can see here. ठीक है, तो हम ये ना लिख करके आई एम स्ट्रेट गोइंग टू राइट. सो यहाँ पे या तो आप इक्वल करके भी लिख सकते हैं 29 divide by 28. Okay, but make sure you're not considering this, or you can just do this in the rough paper, rough place, and this is the final, that is 29 divide by 28. Now after finding my ratios, my most important step is to choose the least positive value from the ratio column. So whether the question is of minimization or maximization, the point is same, that you are supposed to choose the least positive value. आप least positive value choose करोगे from the ratio column. So ये तो negative value है, so this is already eliminated. Now 1 और 29/28. So अगर मैं 29/28 करती हूँ solve, so I'm going to get here 1.035. Okay, what I'm going to get here 1.035. आप अपने कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं. It's you are going to get here as 1.035. So after 1 also you are having numbers. So I am going to consider 1 as my least positive value and S1 is going to be my key row. Okay, S1 जो हो जाएगा मेरा key row हो जाएगा. So let's mark with the pencil. So you can see here I have marked it with pencil. S1 is my key row. And simultaneously, if you want to write the theory also, which is very important, from ratio column choose the least positive value, that is 1. So 1 represents S1 and mark the whole row of S1 as key row. Okay, so अब आप देख सकते हैं x2 मेरा entering variable है, S1 is the leaving variable. Whichever variable is being representing एज की कॉलम, जो भी वेरिएबल हमारा की कॉलम रिप्रेजेंट करता है वो एंटरिंग वेरिएबल बन जाता है, और जो भी वेरिएबल हमारे की रो का रिप्रेजेंटेटिव होता है दैट इज S1, तो वो लीविंग वेरिएबल होता है. एंड 7 इज द की एलिमेंट. सो यू कैन सी हियर, हम यहाँ पे 7 को हाईलाइट कर देंगे. आप ये देख सकते हैं ये 7 जो है इट इज़ कॉमन इन बोथ रो एंड कॉलम. ठीक है, सो 7 इज माई की एलिमेंट. Now what would be the formulas to calculate new values of entering variable? अब entering variable हमारा x2 है, तो इसके लिए हमारा formula क्या होगा? Formula is going to be old value divided by key element. Now always remember old value you are going to take of the leaving variable. So old value that is would be of leaving variable जो कि हमारा S1 है, और हम S1 के values लेंगे. ठीक है, ऊपर इस formula में key element हमें पता है key element हमारा क्या है 7. Now formula to calculate new values of S2. ठीक है, ये तो हमने भाई ये वाले पार्ट मेरा हो गया. अब नीचे जो मेरे दो पार्ट्स बच रहे हैं
ठीक है, वो हमारे क्या है S2 एंड A1। तो इसके लिए हम न्यू वैल्यूज़ निकालेंगे। तो उसके लिए व्हाट इज़ गोइंग टू बी द formula to calculate new values of S2, that is old value minus corresponding key column into corresponding new value of X2 calculated in iteration 1। ये जो मैंने X2 की वैल्यू ये फॉर्मूला रख के यहाँ निकाली है, ये वैल्यूज़ अप्लाई हो जाएंगी आपकी X2 की, ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। देन अगेन फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू वैल्यूज़ ऑफ A1, दैट इज़ आर्टिफिशियल वेरिएबल, old value minus corresponding key column value into corresponding new value of x2 calculated in iteration 1। ठीक है, अगेन ये x2 जो हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय ड्राइंग द ड्राफ्ट। अब ये आपका आइट्रेशन 1 टेबल है, ठीक है, जिसमें हमने CBI, CJ देन बेसिक वेरिएबल फ्रॉम x1 x2 x3 S1 S2 S3 एंड A1, सोल्यूशन एंड रेशियो। ठीक है, सो यहाँ के वैल्यूज सारे ज़ीरो होंगे। A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल आई एम गोइंग टू टेक इट एज 1। देन यहाँ पे S1 की जगह मैंने x2 लिखा है। ठीक है, अब ये तो ऑर्डर वाइज ऑलरेडी पिछले टेबल से ही है। तो एंटरिंग वेरिएबल मैंने जैसा कि आपको बोला कि हमेशा पहले लिखा करिए, क्योंकि इधर जो वैल्यूज़ आप निकालेंगे उसकी ज़रूरत आपको नीचे आने वाली है। ठीक है, सो x2 इज एंटरिंग वेरिएबल, सो आई हैव रिटन ऑन द टॉप, देन S2 एंड देन A1। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगे वो कैसे आएंगे। x2 का वैल्यू इज 0, सो आई एम गोइंग टू पुट अ 0 हियर। ठीक है, देन S2 का वैल्यू इज अगेन अ 0, सो आई एम गोइंग टू पुट अ 0 हियर, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से A1 लिखा है। अब सबसे पहले हम अपने एंटरिंग वेरिएबल्स जल्दी जल्दी कंप्यूट कर लेते हैं। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू ओपन माई प्रीवियस टेबल साइमल्टेनियसली। ओके, सो यू कैन सी हियर, मैंने ये टेबल अपनी खोल ली है, पुरानी टेबल। तो इसमें सबसे पहले मुझे ओल्ड वैल्यू, एंटरिंग वेरिएबल की मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट इज 7। ओल्ड वैल्यूज हम S1 की लेंगे, दैट इज वुड बी ऑफ लिविंग वेरिएबल। सो यू कैन सी हियर 5 डिवाइड बाय 7, दैट्स माई फर्स्ट वैल्यू हियर। सो आई एम गोइंग टू पुट 5 डिवाइड बाय 7। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, it's gonna be 7 divided by 7, so it's 1. 7 divided by 7 is 1, and then next 4 divided by 7, then here 1 divided by 7, then here 0 divided by 7 would give you a 0, it's 3. 0 डिवाइड बाय 7 will again give you a 0, and लास्ट है आपका अगेन 0 डिवाइड बाय 7, so will give you a 0। अब हम आते हैं सोल्यूशन वैल्यू पे। सो सोल्यूशन वैल्यू मेरी 7 है, सो 7 डिवाइड बाय की एलिमेंट, सो यू विल गेट अ 1। ओके, सो मेरे एंटरिंग वेरिएबल के वैल्यूज कंप्यूट हो गए एज यू कैन सी। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट S2 के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ओल्ड वैल्यू। ठीक है, ओल्ड वैल्यू S2 की हम यहाँ से ले लेंगे, ये ओल्ड वैल्यूज़ हैं, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू -7 है, विच वुड बी रिमेन सेम फॉर ऑल, इन टू करस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यूज़ जो हमने ये निकाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन। सो सबसे पहले मेरा फॉर्मूला मैं लिख ले रही हूँ। ओके, सो आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑन माई रफ शीट। नाउ सबसे पहले ओल्ड वैल्यू मेरी क्या है 4, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 4 माइनस, देन नेक्स्ट वैल्यू आपकी करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, इसका करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है -7। ठीक है, इस पूरी रो का करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू वुड बी -7। ओके, सो ये आपका हो जाएगा -7 इंटू करस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू x2 की मैं यहाँ से ले लूँगी। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू आई है ये 5/7 है, 5/7। सो
ओके, सो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं. सो ये आप देख सकते हैं 4 माइनस माइनस वुड बी प्लस. ठीक है, ये 7 और 7 मैंने रिड्यूस कर दिया है. सो 4 + 5 यू वुड बी गेटिंग अ 9. ओके, सो द फर्स्ट वैल्यू इज़ गोना बी 9. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है जो मैं फर्स्ट वैल्यू लिखूँगी वो होगी 9. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ. नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू है आपकी -7 माइनस ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग की वैल्यूज अगेन -7. ओके, सो -7 इज द ओल्ड वैल्यू. You can see here -7 is the corresponding, -7 is the old value, then minus corresponding key column values again -7. okay, into corresponding new value आपकी क्या है 1, यहाँ पे 1 है. ओके, सो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो ये आपका हो जाएगा -7 देन माइनस माइनस +7. ठीक है, तो -7 + 7 विल गिव यू अ 0. स्ट्रेट अवे आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू पुट हियर अ 0. नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू इज -5 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज -7. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व माइनस, यू कैन सी हियर -5 मैंने यहाँ से लिया ओल्ड वैल्यू, देन माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मेरी -7 है, इनटू न्यू वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ 4/7. सो -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन 7 and 7 वुड बी कैंसल्ड. सो यहाँ पे 4. तो अब आप ये देख सकते हैं -4 + 9, तो ये कैंसिल होके -1 वुड बी द आंसर. ओके, so I'm going to write here -1. Next, old value is 0 minus bracket में -7 as key column value. So you can see here old value is 0. ठीक है, माइनस ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग की वैल्यू इज -7 इंटू 1/7. 7 and 7 कैंसिल हो गया, 0 माइनस माइनस +1. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर माय आंसर इज 1. यहाँ पे मैं 1 लिख लूँगी. नेक्स्ट, ओल्ड वैल्यू इज 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज -7. सो ओल्ड वैल्यू इज 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज -7 इंटू न्यू वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारा 0. आई होप नाउ बाय द टाइम यू वुड बी मोर कंफर्टेबल विद द कैलकुलेशन. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 7 इंटू अ 0 वुड बी अ 0. सो दैट्स आंसर इज ऑल्सो 1. अब तक आई होप आपको ये कंप्यूटेशंस करना आ गए होंगे. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट टाइम आई एम शोइंग यू द कंप्यूटेशंस बिकॉज इन नेक्स्ट आइट्रेशंस आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स डायरेक्टली. यू आर सपोज टू सॉल्व योर सेल्फ. लास्ट नेक्स्ट चलते हैं हम. ओल्ड वैल्यू हमारी क्या है? ओल्ड वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं. ओल्ड वैल्यू मेरी 0 है. ओके, ओल्ड वैल्यू इज 0. यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज -7 इंटू, ठीक है, न्यू वैल्यू यहाँ पे क्या है 0. सो यू कैन सी हियर 0 माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा 7 इंटू अ 0. सो विल गिव यू अ 0. तो हमारा नेक्स्ट आंसर 0 आएगा. लास्ट ये वैल्यू देख लेते हैं. ओल्ड वैल्यू है हमारी 0 माइनस ब्रैकेट ओपन -7. ओके, इनटू 0
माइनस ब्रैकेट ओपन -7 इंटू यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, अगेन न्यू वैल्यू x2 की 0 है. सो ये भी आप -7 इंटू 0 करोगे तो रूट भी है 0 एंड 0 + 0 इज़ अ 0. ओके, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है वो 0 है. लास्ट यहाँ पे वैल्यू बचती है सोल्यूशन की. सोल्यूशन में हमारे पास 2 है. सो 2 माइनस ब्रैकेट ओपन -7 दैट इज करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू. सो हियर आई एम गोइंग टू डू 2 माइनस ब्रैकेट ओपन -7 करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू न्यू वैल्यू. न्यू वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 आई है. सो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस इट्स गोना बी अ +7. 7 + 2 इज 9. हाँ, हमारा आंसर हो जाएगा 9. ओके, सो आई होप आपको ये वैल्यूज़ क्लियर हो गए होंगे. आई होप आपको ये वैल्यूज सारे क्लियर हो गए होंगे. अब हम आते हैं A1 पे. A1 के लिए अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू. मैं आपको ओरली बताती जा रही हूँ. सो आप देख सकते हैं, आप सुन लीजिए कैसे करना है. अब A1 के वैल्यूज़ निकालने के लिए हम सबसे पहले ओल्ड वैल्यूज़ लेंगे. ओके, ओल्ड वैल्यूज़ आई एम गोइंग टू बी टेकिंग ऑफ A1. सो ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू. तो अब इसमें करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 4 आपकी, ठीक है, इनटू न्यू वैल्यू. न्यू वैल्यू हम कौन सी लेंगे एंटरिंग वेरिएबल्स की. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट. ओके, सो नेक्स्ट वैल्यू अब आप देखिए A1 की ओल्ड वैल्यू आपकी क्या है 3 माइनस ब्रैकेट ओपन करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 4 इनटू न्यू वैल्यू आपकी है 5/7. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए. तो आपका यहाँ पे A1 का फर्स्ट आंसर वुड बी 1/7. आई होप नाउ आई हैव शोड यू सो मेनी टाइम्स. प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था. सो आई होप नाउ यू आर क्लियर हाउ टू फाइंड दीज वैल्यूज. एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट वी कैन डिस्कस इन आवर गूगल जूम मीटिंग. नेक्स्ट अब हम आते हैं. नेक्स्ट अब मेरे को यहाँ वैल्यू चाहिए. सो A1 की ओल्ड वैल्यू इज़ 4 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू दैट इज ऑल्सो 4. तो 4 माइनस ब्रैकेट ओपन 4 इनटू न्यू वैल्यू. न्यू वैल्यू इज 1. So here you are going to get a 0. Next value for this. Old value -6 minus bracket open corresponding की column value is 4 into new value है हमारी 4/7. Okay. So my answer here is going to be -58/7. Okay. दिस इज़ -58 डिवाइड बाय 7. मैं ये वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दे रही हूँ. यहाँ पे देखिए ओल्ड वैल्यू है -6. लेकिन आई कैन शो यू ऑल्सो दिस नंबर इज़ बिग डिजिट. -6 माइनस ब्रैकेट ओपन करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू हमारी 4 है. ठीक है, इनटू और यहाँ पे देखिए इसी कॉलम में न्यू वैल्यू इज़ 4/7. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स -6 माइनस 4 4s are 16 डिवाइड बाय 7. ओके, सो मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो ये -6 यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं एंड -16/7. सो माई LCM इज हियर 7. 7 6 42 हो जाएगा एंड 16. ठीक है, तो 42 -42 and -16 you will add up these two 42 and 16, so you will get 58. So minus minus is plus, divide by 7, so 58 divide by 7. Okay, there is a mistake. I have written here plus sign, but plus आप करेंगे 42 and 16 because minus minus is plus, but sign हम बड़े नंबर का लेते हैं. So 42 के आगे minus है, so it's gonna be -58/7. Okay, so I have put in here -58/7. I hope now this is clear how you are supposed to solve. Next old value की तरफ चलते हैं. Next old value is 0 minus corresponding key column value is 4 into new value is 1/7 bracket close. तो इस केस में आपका आंसर आएगा -4/7. Next, old value is 0 minus bracket open again into 0. Old value is 0 minus bracket open corresponding key column value is 4 into
new value. This is 0. So here your answer is going to be a 0. Next here, old value minus 1 minus, again bracket open, corresponding key column value is 4 into न्यू वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 है. सो इस केस में आपका आंसर आएगा -1. प्लीज़ डू सॉल्व इट योर सेल्फ, डोंट कॉपी फ्रॉम हेयर. सॉल्व करिए तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. देन वैल्यू फॉर दिस, ओल्ड वैल्यू आपका, ओल्ड वैल्यू इज हेयर 1 माइनस ब्रैकेट ओपन, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 4 इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू, दैट इज यहाँ पे 0 आया है. सो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 1. ओके, एंड लास्ट हम देख लेते हैं फॉर सोल्यूशन कॉलम. old value is 29/7. This I'm going to solve for you. Old value is 29/7. Okay, so old value is 20 minus bracket open, corresponding key column value is 4. 29/7 is old value, फिर bracket open, corresponding key column value is 4 into new value यहाँ पे देख लेते हैं 1 आई है. ओके, सो 29/7 माइनस 4, तो यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं, 7 देन 29 माइनस 1 डिवाइड बाई 7, तो 7 आ जाएगा, 7 4 is 28. सो हियर इट्स 1/7. ओके, सो यहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे वो आपका है 1/7. ओके, so I hope all these values you have calculated. Okay, so I hope you have calculated all these values. Now my next step is to find ZJ values. So 0 multiplied by 5/7 will give you a 0, plus 0 multiplied by 9 will give you a 0, plus 1 multiplied by 1/7. So here you're going to get a 1/7. Then next, 0 multiplied by 1 would be a 0, plus 0 multiplied by 0 would be a 0, plus 1 into 0 would be a 0. Next value, 4/7 into 0 plus minus 1 into 0 would be a 0, plus minus 58/7 into 1, so it will give you minus 58/7. Next, 1/7 into 0 would be a 0, plus 1 into 0 would be a 0, plus minus 4/7 into 1 would give you minus 4/7. Next, 0 into 0 would be a 0, plus 1 into 0 would be a 0, plus 0 into 1 would be a 0. 0 into 0 would be a 0, plus 0 into 0 would be a 0, plus minus 1 into 1 will give you a minus 1. Last, 0 into 0 would be a 0, plus 0 into 0 would be a 0, plus 1 into 1 would be a 1. 1 into 0 would be a 0, plus 9 into 0 would be a 0, plus 1/7 into 1, so here you're going to get 1/7. So these are my ZJ values. Now we'll compute CJ minus ZJ values. Okay, so 0 minus 1/7, so I'm going to get here minus 1/7. Again, 0 minus 0 would be a 0, simple. ये minus 1/7 है, please make sure. Then 0 minus 58/7, so it would be a positive 58/7. Again, 0 minus 4/7, so it was going to be a positive 4/7. 0 minus 0 would be a 0. 0 minus -1 would be a +1, and 1 minus 1 would be a 0. Okay, so you can see here all CJ minus ZJ values are calculated. Now we would be checking the optimality condition for minimization. Okay, so now we'll check the optimality condition, that is CJ minus ZJ should be greater than equal to 0, that is either 0 values or positive values. But here you can see all values are 0 and all the values are positive, but there is one exemption, there is one negative value, so optimality is not reached. So minus 1/7 is just the representative of x1. So we'll mark this whole column of x1 as key column. Okay, so mark x1 as key column.
Now you can see I've marked x1 as key column. Now what we are going to do, we are supposed to mark our key row, and to mark the key row I have to find the ratio. Now you can see here, to find key row we'll calculate ratios. Okay, so ratios का formula I know, I hope you all know. So ratio का formula आपका क्या होता है, solution divided by key column. Okay, so my first answer is gonna be 1 divide by 5/7. ठीक है, यहाँ मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ, 1 डिवाइड बाय 5/7. सो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 5/7. ठीक है, तो ये आपका जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, यू कैन सी, यहाँ से ये हटा दीजिए. 1 डिवाइड बाय 5/7 है, सो दिस 7 विल गो ऑन द टॉप एंड 1/5. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय 5. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रेशियो मेरा है 7 डिवाइड बाय 5. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सोल्यूशन 9 डिवाइड बाय की कॉलम वैल्यू. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 9 इज 1. नेक्स्ट 1/7 डिवाइड बाय 1/7 यू विल गेट अ 1. ठीक है, सो फ्रॉम द रेशियो कॉलम वी आर सपोज टू चूज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, हमें हमेशा ये बताया गया रेशियो कॉलम में से लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे. नो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वैल्यूज 1 है, तो अब हम दोनों में से कौन सा चूज करेंगे एज की रो. नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन. तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपको अपने कॉपी में नोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम रेशियोज वी विल चूज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू. Here we have two same least positive values. यहाँ पे हमारे पास दो same least positive values हैं, 1 and 1. You can see here 1 and 1. So we'll choose the one which will represent variable a1. ठीक है, हम ये वाला 1 चूज़ करेंगे. क्यों हम चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल 1, ये नंबर 1 विल इज़ रिप्रेजेंटेटिंग वेरिएबल a1. अच्छा, ये वाला जो भी की रो का एलिमेंट होता है, ये हमारा जो की रो का वेरिएबल होता है, ये कैसा वेरिएबल होता है, लिविंग वेरिएबल. और हमने ये आपको स्टार्टिंग में थ्योरी में बताया था कि फेज़ 1 में हमारा मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करें, हटाएं पूरी तरीके से. तो अब हमें चांस मिल रहा है, तो हम S2 को नहीं चूज़ करेंगे, हम किसको चूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 को. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये वेरिएबल लिविंग वेरिएबल बन जाए. दिस शुड बी कम्प्लीटली रिमूव, ओनली देन वी कैन मूव टू फेज 2. तो इसको, इस पॉइंट को ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए. So if we'll choose one which will represent variable a1. Reason भी लिख लीजिए, as we are supposed to get zero value of artificial variable, and artificial variable should be removed completely in phase 1. Only then we can move to phase 2. ठीक है, तभी हम, इसीलिए हमने S2 को चूज़ नहीं किया, मैंने किसको चूज़ कर लिया, A1 को. तो हम A1 को मार्क कर लेंगे एज माई की रो. यू कैन सी हियर आई हैव मार्क्ड माई A1 रो एज अ की रो. ठीक है, सो एंड 1/7 मेरा आप देख सकते हैं कॉमन है, कॉलम में भी एंड रो में भी. सो दिस इज माई की एलिमेंट. यू कैन सी हियर, सो A1 इज की रो. 10 x1 जो आपका रिप्रेजेंटेटिव था की कॉलम का, वो आपका एंटरिंग वेरिएबल है, एंड A1 जो आपका रिप्रेजेंटेटिव था की रो का इज द लिविंग वेरिएबल, एंड 1/7 इज योर की एलिमेंट. नाउ वी विल बी मेकिंग आवर iteration 2 table, and before this we would be writing the formula. Now formula for calculation of values for entering variable, इस केस में हमारा entering variable x1 है. So old value divided by key element. ओल्ड वैल्यू हम किसकी लेंगे, लिविंग वेरिएबल की, और लिविंग वेरिएबल हमारा क्या है, A1, एंड की एलिमेंट इज 1/7. ओके, एंड देन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू वैल्यूज़ फॉर, यहाँ पे जो न्यू वैल्यूज़ हैं, अब ये पहले मैंने ये वाला पॉइंट जो है मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है टेबल में अपने. क्यों, क्योंकि हमें एंटरिंग वेरिएबल पहले निकालना है. तो अब हम बाकी के दो जो वैल्यूज़ हैं, x2 फिर नीचे लिखेंगे, फिर S2. तो x2 के लिए फॉर्मूला एंड S2 के लिए फॉर्मूला इज जस्ट द सेम एज यू ऑल नो. ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू ऑफ x1 जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल के निकले. नाउ फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू वैल्यूज फॉर S2. तो अगेन द फॉर्मूला इज ओल्ड वैल्यू
minus bracket open corresponding key column value into corresponding new value of x1, that is entering variable. ओके सो अब हम ये अपना आइट्रेशन 2 टेबल बना लेंगे जल्दी से. आइट्रेशन 2 टेबल जो है मेरा बेसिक वेरिएबल ऑल x1 x2 x3 s1 s2 s3. नाउ सी आर्टिफिशियल वेरिएबल वॉज अ लिविंग वेरिएबल a1, तो वो यहाँ से रिमूव हो गया है. ठीक है, वो यहाँ से रिमूव कर दिया है मैंने. आई एम नॉट गोइंग टू राइट हेयर. अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ आपके कैसे हो गए, ज़ीरो. यहाँ पे मैंने सबसे पहले एंट्रिंग वेरिएबल लिखा है x1 और फिर मैंने नीचे यहाँ से दो वैल्यूज़ कॉपी कर लिए x2 एंड s2 इसी ऑर्डर में. तो पहले x2 फिर s2. अब हम यहाँ पे इनके वैल्यूज़ लिख लेंगे. इनके वैल्यूज़ आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम हेयर, 0 0 एंड 0. ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है एंट्रिंग वेरिएबल का, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट. ठीक है, तो ये आपका जो है, अब ये देख सकते हैं ये आपके जो हैं ओल्ड वैल्यूज़ हैं लिविंग वेरिएबल के. ओल्ड वैल्यू किसके लोगे, लिविंग वेरिएबल के. सो 1/7 डिवाइड बाय की एलिमेंट भी हमारा 1/7 है. सो आंसर इज गोना बी 1. फर्स्ट आंसर इज गोना बी 1. नेक्स्ट old value is 0, 0 divided by key element 1/7, so it's going to be a 0. Again, minus 58/7 divide by 1/7. Minus 58/7 divide by 1/7, so you will get minus 58. आप सॉल्व करके देख सकते हैं. minus 58/7 old value है, divide by 1/7, so you will get minus 58. फिर नेक्स्ट हम चलते हैं. ओल्ड वैल्यू इज -4/7 डिवाइड बाय 1/7. सो हियर ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट -4. -4/7 डिवाइड बाय 1/7, सो यू विल गेट -4. नेक्स्ट वैल्यू 0 डिवाइड बाय 1/7, सिंपली अ 0. एंड लास्ट आपका ये यहाँ पे -1 डिवाइड बाय 1/7, सो यू विल गेट -1/7. Now let's move to the solution column. Solution column आपका कह रहा है 1/7 divide by 1/7. So I'm going to get here 1. Now we will move to x2 values. अब हम नई वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे फॉर x2. ओके, सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको लिखा चुके. न्यू वैल्यूज़ फॉर x2 इज ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू into corresponding new value of x1, that is entering variable. तो अब हम देखते हैं इसके लिए. सबसे पहले भाई हम देख लेते हैं ओल्ड वैल्यू हमारी क्या है. तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा s2 है, ओल्ड वैल्यू इज़ 9. ठीक है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 9 इनटू न्यू वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5/7. तो अगर आपको उसका रफ वर्क चाहिए तो रफ वर्क मैं आपको यहाँ शो कर दे रही हूँ. फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू वैल्यूज़ फॉर x2, सो यू कैन सी ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू. ठीक है, ये आप देख लीजिए 5/7 है, कॉमन रहेगा. ये मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया है, कॉमन रहेगा आपका 5/7. ठीक है, इनटू न्यू वैल्यू ऑफ आइट्रेशन 1 टेबल. मैं एक बार फिर से शो कर दे रही हूँ, मे बी शायद आई हैव मेड वन मिस्टेक इन स्पीकिंग. सो आप फिर से देख लीजिए. फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू वैल्यूज़ फॉर x2 इज ओल्ड वैल्यू. ठीक है, तो ओल्ड वैल्यू हम किसकी लेंगे, x2 की ही ओल्ड वैल्यू लेंगे. तो x2 की देख लीजिए ओल्ड वैल्यू क्या है आपकी 5/7 है. मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ करके. ओल्ड वैल्यू x2 की इज 5/7 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू. करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है x2 के लिए, पूरी रो के लिए 5/7 ही रहेगी. ठीक है, आई थिंक प्रीवियसली मैंने 1/7 बोल दिया बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी. सो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 5/7 और ये जितने भी हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे सबके लिए सेम रहेगी. इनटू न्यू वैल्यू आपने किसकी निकाली है, न्यू वैल्यू जो आपने निकाली है यहाँ पे ये देख लीजिए 1. सो यहाँ पे आप फॉर्मूला अगर देखना चाहते हैं तो ओल्ड वैल्यू वॉज 5/7 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 5/7 इंटू न्यू वैल्यू जो हमने आइट्रेशन 1 टेबल से लिया 1. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0. सो आई एम गोइंग टू पुट अ 0 हियर. नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू देख लीजिए आप. दिस इज द ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 5/7 इनटू न्यू वैल्यू वो की आपकी 0. ठीक है,
तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप रफ वर्क देख सकते हैं, 1 ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यूज 5/7 इंटू 0. सो 5/7 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 0. सो आंसर 1 माइनस 0 इज 1. नेक्स्ट इधर वैल्यू देखते हैं. ओल्ड वैल्यू सबसे पहले, ओल्ड वैल्यू इज 4/7 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 5/7. सो यू कैन सी हियर 4/7 ओल्ड वैल्यू माइनस ब्रैकेट ओपन करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 5/7 इंटू न्यू वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, -58. ठीक है, सो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन -58. जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 4/7 माइनस 5 इंटू -58 विल गिव यू -290. आप अपने कैलकुलेटर में करके देखिए, डिवाइड बाय 7. सो 4/7 माइनस प्लस 290/7. सो वी विल टेक द LCM इज 7. 4 + 290, so it's going to be 294/7. 294/7 को हम फ्रैक्शन हटा देंगे. 7 1s are 7, 7 4s are 28 and 7 2s are 14, so it's 42. So I'm going to put here 42. नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू, ओल्ड वैल्यू है आपकी 1/7 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 5/7. सो आई एम अगेन रिपीटिंग. सो यहाँ पे हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमारा ओल्ड वैल्यू इज़ 1/7 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 5/7 इंटू, ठीक है, इंटू हमारा जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू मेरी यहाँ से मिल जाएगी हमें विच इज़ -4. सो आप यहाँ पे देख सकते हो 1/7 इज़ ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 5/7 इंटू -4. सो 1/7 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4s are 20/7. 7 इज़ द LCM. सो 1 + 20 is equals to 21/7. So answer is 3. So I'm going to put a 3. नेक्स्ट वैल्यू मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. ओल्ड वैल्यू इज 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 5/7 इंटू न्यू वैल्यू. न्यू वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे जो कि हमारी 0. सो अगेन देख सकते हैं हम 0 5/7 इंटू 0. सो विल गेट अ 0. प्लीज़ डू द कैलकुलेशंस योर सेल्फ, ओनली देन यू वुड बी हैविंग द कमांड. यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट वैल्यू हमको क्या चाहिए, ओल्ड वैल्यू मेरी 0 है, ठीक है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 5/7 इंटू न्यू वैल्यू. न्यू वैल्यू इज़ -1/7. 0 ओल्ड वैल्यू माइनस 5/7 करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू. Okay, so while I was solving for this column, I found one mistake जो आपने पहले देखी होगी. मिस्टेक ये है यहाँ पे, ये जो मैंने एंट्रिंग वेरिएबल का वैल्यू निकाला है ये -1/7 नहीं, इट इज़ जस्ट -7. ठीक है, और वो कैसे है मैं एक बार ये आपको हॉल्ट करके शो कर दे रही हूँ, आप फिर से चेक कर लीजिए. ये हमारी एंट्रिंग वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं. एंट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू का फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू ऑफ द लीविंग वेरिएबल डिवाइडेड बाय की एलिमेंट. तो हमारा लीविंग वेरिएबल ये A1 था, तो यहाँ पे आप ओल्ड वैल्यू देख सकते हैं, इट वॉज -1. ओके, ओल्ड वैल्यू आपकी -1 थी, डिवाइडेड बाय 1/7. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो -1 डिवाइड बाय 1/7, तो ये आपका 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो -1 इंटू 7/1. सो यू आर गोइंग टू गेट हियर -7. ठीक है, ये प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए आप लोग, और अगर आपने खुद से कैलकुलेट किया होगा देन आपका ये पॉइंट यहाँ पे करेक्ट आ रहा होगा. सो आई एम गोइंग टू जस्ट करेक्ट हियर, ये आपका हट जाएगा, इट इज़ जस्ट -7. ओके, प्लीज़ डू द करेक्शन. अब हम यहाँ चलते हैं यहाँ की वैल्यू के लिए. तो ओल्ड वैल्यू जो यहाँ पे है मेरी x2 की क्या है, 0. आप देख सकते हैं -0, यहाँ ओल्ड वैल्यू 0 है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 5/7 इंटू मेरी न्यू वैल्यू आ रही है -7. सॉल्व आप सॉल्विंग देख सकते हो यहाँ पे, इट इज़ 0 माइनस ब्रैकेट ओपन करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 5/7 इंटू न्यू वैल्यू है आइट्रेशन 2 के टेबल में, ये आप देख सकते हैं न्यू वैल्यू इज़ -7. ठीक है, इसको मैंने करेक्ट कर लिया है. सो 0 माइनस ये 7 and 7 वुड बी कैंसल्ड आउट. ठीक है, तो बचा 5. 0 माइनस -5, so you'll get a +5 है. एंड लास्ट हमारे पास अब सोल्यूशन का वैल्यू हमको चाहिए. सो यहाँ पे आपके पास है 7/5 इज़ द 1. सोल्यूशन वैल्यू आपकी 1 है. 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 5/7
into new value that is 1. So you can see here 1 is your solution old value, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, ठीक है, 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यूज 5/7 इंटू न्यू वैल्यू देख लीजिए एंटरिंग वेरिएबल की यहाँ पे भी 1 है, सो 1. सो 5/7 इंटू 1 विल गिव यू 5/7 एंड इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 2/7. ओके, साइमल्टेनियसली अब हम इसी तरीके से जो है ये वाले वैल्यूज़ निकाल लेंगे फॉर S2, ठीक है. S2 की अब हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे. फॉर्मूला में एक बार दिखा दे रही हूँ, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू ऑफ x1 दैट इज एंटरिंग वेरिएबल. सो यहाँ पे हमारे पास ये S2 है, ये S2 के सारे ओल्ड वैल्यूज़ हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट पॉइंट देखिए 9 माइनस ओल्ड वैल्यूज़ 9 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यूज़ 9 इंटू न्यू वैल्यू यहाँ पे क्या है 1. तो फर्स्ट जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0. ओके, प्लीज़ डू द कैलकुलेशन योर सेल्फ एंड यू कैन क्रॉस चेक. नेक्स्ट आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ओल्ड वैल्यू इज़ 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 9, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 9 इंटू न्यू वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 0, ठीक है. फिर हम ये वाला वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं. एक वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रही हूँ. यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू आपका क्या है -1. सो आई हैव रिटन हियर -1, यू कैन सी माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मेरा क्या है 9 इनटू यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वैल्यू इज़ -58, ठीक है. अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो -1 माइनस ब्रैकेट में -58 इंटू 9 अगर मैं कर लेती हूँ तो इट इज़ 522. आप अपने कैलकुलेटर में करके देख लीजिए. -1 माइनस प्लस 522. सो 522 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बट प्लस का साइन रहेगा. 521 इज द आंसर. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 521. देन फॉर दिस ओल्ड वैल्यू इज़ 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 9 इंटू -4. सो आंसर इज 37. नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं. ओल्ड वैल्यू आपकी क्या है 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 9 इंटू न्यू वैल्यू आपकी है 0, ठीक है. तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1. फिर इधर चलते हैं. ओल्ड वैल्यू इज़ 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 9 इंटू न्यू वैल्यू इज़ -7, ठीक है. तो यहाँ पे आपका आंसर एक मैं फिर अगेन आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. यहाँ पॉइंट का यहाँ पे आपका ओल्ड वैल्यू देख लीजिए क्या है 0 माइनस ब्रैकेट ओपन करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 9. यू कैन सी है करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 9 और इसी पॉइंट पे जो है हमारा न्यू वैल्यू इज़ -7. ठीक है. तो 9 7 से 63 होता है. तो अगेन -63 और मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगी तो ये पॉजिटिव 63 हो जाएगा. तो यहाँ माई आंसर इज हियर 63. लास्ट ये कॉलम देख लेते हैं. 1 सॉरी ये सोल्यूशन है 9 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज़ 9 इंटू न्यू वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है मेरी 1, ठीक है. तो यहाँ पे आपका आंसर 0 हो जाएगा. तो ऐसे हमने सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिए. अब हम ZJ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब थोड़ा सा हम अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे वैल्यूज़ 0 हैं. तो अगर 0 को मैं या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी सो आई एम गोइंग टू गेट अ 0. सो आप यहाँ पे अपना टाइम बचाने के लिए अगर यहाँ पे सारे वैल्यूज़ 0 हैं तो आपके यहाँ के भी सारे वैल्यूज़ 0 ही आएंगे बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल गिव यू अ 0. सो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू राइट अ 0. इफ़ यू वांट यू कैन डू द कैलकुलेशन यू विल गेट अ 0 हियर. ओके, अब हम CJ माइनस ZJ आ जाते हैं. CJ माइनस ZJ आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर CJ के सारे वैल्यूज़ 0 हैं और नीचे भी ZJ के सारे वैल्यूज़ 0 हैं. तो 0 माइनस बाय 0 विल ऑलवेज गिव यू अ 0. ठीक है. सो आई हैव सॉल्व टिल हियर. नाउ अब हम आगे देखते हैं.
all Cj minus Zj values are 0. So as per our optimality condition, all Cj minus Zj values should be either 0 और पॉजिटिव. ठीक है, तो हमारी मिनिमाइजेशन की ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या कहती है कि हमारे Cj माइनस Zj वैल्यूज़ 0 आने चाहिए या फिर पॉजिटिव आने चाहिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऑप्टिमैलिटी रीच हो गई है, 0 ही वैल्यूज़ आ रहे हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स आवर ऑप्टिमैलिटी हैज़ बीन रीच्ड. नाउ यू कैन सी हियर नेक्स्ट जो है हमारा, इन आइट्रेशन 2 टेबल द Cj वैल्यूज़ आर ऑल 0 for all basic variable and artificial variable is completely removed. आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने लास्ट आइट्रेशन 2 का टेबल बनाया है इसमें मेरे सारे Cj के वैल्यू 0 हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल जो A1 था मेरा जिसका वैल्यू हम 1 लिख रहे थे वो भी पूरी तरीके से वी हैव रिमूव्ड है. ठीक है, तो इस केस में अब ये हमें ग्रीन सिग्नल है कि अब हम फेज़ 2 की तरफ जा सकते हैं. सो नाउ वी विल मूव टू फेज़ 2. ठीक है, सो हम फेज़ 2 की तरफ चलते हैं. ओके, फेज़ 2. नाउ फेज़ 2 के लिए आई वुड बी सॉल्विंग द फेज़ 2 इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो इन पार्ट 2 आई वुड बी शोइंग द फेज़ 2. ओके, so just we'll continue there.